Hello students, I Sushma Kataria from Surya School Vivai, and today in this video we will discuss about the third part of 12th class syllabus Poet and Pancakes explanation and the chapter. As you know that in our previous video we have discussed about some important element of the chapter as well as the character sketch of Subbu, and now we are about in the ending portion of the chapter and one of the most important point. Okay, we already discussed about the incident related to an actress yesterday in our yesterday video. So let's discuss about one of the most important, the second most important portion, the anti-communism perceptions. Sorry. So, what is the anti-communism perception? Okay, in the Gemini studio, almost every part of India, the person came and start working because, as you know, that Bombay was considered or is considered also as the city of dreams. Okay, so everyone came there. Everyone go there to complete their dreams, to get a successful life, to get a life with full of charm and popularity. So in the Gemini studio, we have the person as a worker from every part of India. Clear? Uh, but presently, one of the Bengali owner was also there. The person who was covering the old department as a manager or other persons. Okay, so in the Gemini studio we have almost from every part of India. The workers are coming over there and they start working. So one more question can be there, which is very important. How can you say that the Gemini studio is the best example for national integration? The reason is because from they are working together as a family, whether they are coming from different part of India, but they are working together, they are living together, they are celebrating their own traditions. Clear? Whether it's a Bengali person is there as a second person of the Gemini studio, he start वर्किंग एंड ही सेलिब्रेट दैट थिंग्स, और वो अपने अपने डिपार्टमेंट के अपने लोगों को, बंगाल से अपने लोगों को लेके आता था एंड ही स्टार्ट गिविंग जॉब देयर टू देम देयर. सो इस तरह से क्यों इसको नेशनल इंटीग्रेशन का एक बेस्ट एग्जांपल बोला गया था उस टाइम पे जेमिनी स्टूडियो को? बिकॉज इंडिया के हर पार्ट से वहाँ पे पर्सनस जो हैं वो काम करते थे वहाँ पे, एंड दे सेलिब्रेट देयर ओन traditions and they celebrate their own portions. Okay, so let's discuss about the anti-communism perception. The legal advisor wore trousers, shirts and tie, and something he wore coat too. Okay, some actually यहाँ पे क्या है कि हर डिपार्टमेंट के जो persons हैं, they are having a proper uniform to wear. As like if you are we are discussing about a writer, they have to wear a khadi kurta and with pajama, and they have to have a bag with them. Okay, and the makeup artist, because their work is very hectic and their work are very hard type of, so they have to wear a shirt and lungi. Clear? And the as the legal department persons are there, so they have to wear a shirt, tie and a coat. Clear? So these are the uniform of every department in Gemini studio. He appeared odd among the khadi कल पोइट्स एंड राइटर. क्लियर? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो राइटिंग पोर्शन से, जो राइटिंग डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो खादी के कपड़े पहनते थे. द पोइट्स एंड वर्शिप्ड गांधी दो दे हैड नो अफेक्शन ऑफ टू हिज आइडियाज. मतलब ऐसा नहीं है कि वो गांधी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, उनके आइडियाज़ को फॉलो करते थे, बट इट इज़ देयर यूनिफॉर्म. ओके, बट दे वर अवेयर टू कम्युनिज्म से, मतलब जो कम्युनिटीज जैसे डिवाइडेड होते हैं, दे आर वेल अवेयर अबाउट दैट. तो यानी कि सिंपल है कि यहाँ पे जो हर डिपार्टमेंट को एक पोर्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था, वहाँ पे डिवाइडेशन था, बट इवन देन दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर वन डिपार्टमेंट और फॉर वन जेमिनी स्टूडियो. ओके, दे हैड अ नेशन दैट कम्युनिस्ट लव्ड नोबडी. ओके, एक्चुअली वहाँ पे कम्युनिस्ट को सच कोई पसंद नहीं करता था. मतलब ऐसा नहीं था कि वहाँ पे हर कोई इंसान अपने ही लोगों को प्रायोरिटी देता था या अपने कम्युनिटी को वो प्रायोरिटी दी जाती थी. दैट इज़ नॉट दैट मच.
clear. Every person loved with everyone, and every person respect their tradition, respect their costumes, respect their feelings of nation, clear. So जो जो वहाँ के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं एंटी कम्युनिस्ट प्रिसेप्शन वाले थे. ओके, सो यहाँ पे एक पोर्शन हुआ अराइवल ऑफ एमआरए. अब यहाँ पे वो आपको पता चलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमआरए. So, the feeling against communism were widespread in South India. Okay, the moral re-emergent army was a sort of anti-communist movement. It visited Gemini Studio in 1952. मतलब एक आर्मी काइंड ऑफ, और एक आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ था. एंटी कम्युनिस्ट जो पर्सन थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, और उनका जो प्रिसेप्शन है वो उन्होंने विजिट किया जेमिनी स्टूडियो में 1952. देयर वर अबाउट 200 पीपल बिलोंगिंग एटलीस्ट 20 नेशनलिस्ट. क्लियर, मतलब 200 लोगों का वो ग्रुप था पूरा. वो आर्मी जो थी वो 200 लोगों की ग्रुप था, और 20 अलग अलग नेशनैलिटीज को वो रिप्रेजेंट करते थे. दे प्रेजेंट 2 प्लेस, जोथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर, इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर. अब देखो वो जेमिनी स्टूडियो में गए थे तो वहाँ के लोगों को उस चीज़ को समझाने के लिए व्हाट इज़ अ कम्युनिज्म एंड व्हाट द थिंग्स आर एंटी कम्युनिज्म, जो पर्सन थे उन लोगों को समझाने के लिए उन्होंने 2 यहाँ पे प्ले को प्रेजेंट किया, जोथम वैली and forgotten factor. Clear? So Gemini family is of 600 and the citizens of Madras were greatly impressed by their play. Okay, so their message was simple but they said the customs were एक्सीलेंट. मतलब उनका जो मैसेज था बहुत सिंपल है कि आपको कम्युनिज्म को बढ़ावा नहीं देना है. वेदर आप बहुत सारे लोग हो, अलग अलग हो, तो लेकिन किसी ना किसी के माइंड में वो चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ भाई हम अपने लोगों को प्रायोरिटी दे. वो कहते हैं ना कि नेपोटिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे वो. तो समवेयर उन्होंने, उनका जो काम था, उनके जो प्ले थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, उनके जो थॉट प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उनके थॉट प्रोसेस का जो असर उन लोगों पे हुआ जेमिनी स्टूडियो पे वो बहुत ही ज़्यादा अलग था. फॉर मैनी ईयर्स द तमिल ड्रामा इमिटेट द सनराइज एंड सनसेट सीन्स presented by the MRA. Okay, so this is not that much important. The scene were presented on the base of stage and white background, a tune played on a flute. So एक तरह से कहते हैं ना कि एक चीज़, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपका अगर किसी इमोशंस को दिखाना चाहते हो या आपने किसी तो उस म्यूज़िक के अकॉर्डिंग आप सीन के मूड को हम समझ लेते हैं कि इफ इट इज़ अ सैड एटमोसफेयर और यू आर शोइंग द हैप्पी एटमोसफेयर. सो यहाँ पे क्या दिखाया जाता था, अगर वो कुछ इस तरह के जो सीन्स दिखाए जाते थे वो सिर्फ फ्लूट के दौर पे प्ले किए जाते थे. द MRA डिड नॉट इन्फ्लुएंस द आउटलुक ऑफ जेमिनी बॉसेज. क्लियर, मतलब उनको उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो जेमिनी के जो बॉसेज हैं वो किस तरह से हमारे प्रोसेस को लेते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस को ले रहे हैं, बट दे enjoyed that things. The staff enjoy hosting the MRA. Clear? So somewhere MRA is a organization, moral re-emergent army. Clear? A kind of anti-communism movement. Clear? I think आप समझ गए होंगे what is the meaning of MRA in this chapter. Okay, so next. अब यहाँ पे एक लास्ट में क्या होता है कि एक जो जेमिनी स्टूडियो के ऑनर हैं वो अनाउंस करते हैं दैट वन गेस्ट इज़ देयर, द गेस्ट विल बी देयर इन आवर जेमिनी स्टूडियो एंड दे गोइंग टू विजिट. एंड उस टाइम पे, जिस टाइम पे उन्होंने अनाउंस किया था, उस टाइम पे जो जेमिनी स्टूडियो का जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो इतना नहीं था. दे आर नॉट हैविंग दैट मच काइंड ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द जेमिनी स्टूडियो. सो वहाँ के जितने भी लोग थे उनको लगा कि मे बी इट वॉज a person who going to finance there, and maybe he was coming there and to judge the elements and to give some amount and give some business to the Gemini studio. So वहाँ के लोगों ने, जो persons हैं, जो वहाँ के office boys थे, other persons, so they have a curiosity in them that who can the person is. Okay, तो उन्होंने जब उनके बॉस ने अनाउंस किया that one guest is there with us, सो यहाँ पे उनको एक क्यूरियोसिटी उन लोगों के मन में उनके बॉस ने अराइज कर दी कि दैट डेफिनेटली वी हैव अ गेस्ट.
अब उन्होंने क्या what kind of things they announce? A few months later, Gemini Studio received another guest. जैसे पहले वो MRA वाले आए थे, अब यहाँ पे another guest. It was an Englishman. Nobody know who he was. Clear? Some said that अब देखो illusion एक question आएगा. What kind of illusion the Gemini Studio person have about that guest? Clear? Some person that said that he was a poet. Some believe that he was an editor because the top man that means the owner Hindi were talking the initiative. Okay, but he was not the editor of any newspaper and staff of Gemini Studio had heard of. मतलब किसी भी न्यूज़ जो लॉयर डिपार्टमेंट के थे या राइटिंग डिपार्टमेंट के, no one understand who the person is. The Englishman was welcomed by the boss, Mr. Vasan. He read out long speech talking of freedom and democracy. Clear? Then the Englishman spoke. अब देखो मिस्टर वॉटसन ने फ्रीडम के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में बहुत लंबा सा स्पीच दिया. जो लोग थे उनको बहुत अलग अलग थॉट्स आ रहे थे, हु द पर्सन इज, कौन है ये पर्सन, बट दे आर कम्प्लीटली डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्लू अबाउट दैट गेस्ट. क्लियर? अब यहाँ पे जो इंग्लिश मैन है उन्होंने बोलना स्टार्ट किया. दे एक्सपेक्टेड टू हैव एनी इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोइट्री. दे विजिट द इंग्लिश मैन रिमाइंड अ मिस्ट्री. मतलब उन्होंने एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि जब वो जो इंग्लिश मैन है वो जब स्पीच दे रहे थे, नो वन अंडरस्टैंड दैट थिंग्स बिकॉज किसी को वहाँ पे इंग्लिश उतनी नहीं आती थी. सो नो वन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन स्पीक. सो वो एक और मिस्ट्री क्रिएट हो गई. उनको समझ ही नहीं आया कि वो पर्सन एक्चुअली है क्या. क्लियर? वो एक पोइट है, वो एक एडिटर है, या फिर वो एक एक्टर है. हु द पर्सन इज, द नो वन अंडरस्टैंड हिज थिंग. So the mystery solved. The author saw a notice in the Hindu. Clear? अब वो who the person is, उस मिस्ट्री को सॉल्व कैसे हुआ? द ऑथर सो, जो ऑथर यानी कि जो राइटिंग पोर्शन डिपार्टमेंट में काम करते थे हमारे, दे सॉ अ नोटिस इन द हिंदू, दैट मीन्स इन अ न्यूज़ पेपर. ही सॉ एन आर्टिकल. The encounter, a British periodical, was organized a short story of contest. Clear? The author had never heard the name of the periodical. Okay, so यहाँ पे एक कंटेस्ट वो किया गया जो ब्रिटिश पीरियोडिकल जो मतलब जो इंडिया पे जो ब्रिटिश एलिमेंट थे उस टाइम पे, जो लोग थे राइटर्स, उस एलिमेंट के बारे में लिखने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, एक कॉन्टेस्ट रखा गया. वो भी अपनी एंट्री, जो ऑथर है वो भी अपनी एंट्री यानी कि जो अशोका हैं वो भी अपनी एंट्री को उसमें डालना चाहते थे. बट ही वॉन्टेड टू हैव इन्फॉर्मेशन बिफोर, मतलब वो, लेकिन उनको वो इन्फॉर्मेशन पहले से चाहिए थी. सो एक्चुअली इस यहाँ पे वो पूरी मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं कि वो एक्चुअली जो पर्सन आया था वो था कौन. क्या दिखाया है कि वो ऑथर जो है उसको एक हिंदू में उनको नोटिस मिला, उनको पता चला कि एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है जो कि जो इंडियन राइटर्स है दे हैव टू राइट अबाउट द ब्रिटिश पीरियोडिकल टाइम. क्लियर? सो द ऑथर ऑल्सो वॉन्ट टू गिव देयर हिज एंट्री इन दिस. Okay, he visited the British Council Library to collect the information because before, while you are writing on about any topic, you have to you should have some kind of knowledge about it. So he visited. He visited the British Library. He learned that its editor was Stephen Spender. ओके, हु विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो. अब यहाँ पे उनको पता चल गया कि उन्होंने एक बुक देखी थी जहाँ पे उस पर्सन की फ़ोटो थी जो जो उनके जेमिनी स्टूडियो में जिन्होंने विजिट किया था, वो एक एडिटर राइटर थे जिनका नाम था स्टीफन स्पेंडर. आई थिंक यू ऑल आर वेरी अवेयर अबाउट दैट पर्सन, द नेम विद द पर्सन. अ फ्यू ईयर लेटर द ऑथर रिटायर्ड, मतलब जो ऑथर है वो रिटायर हो गए. वन डे ही सॉ अ पाइल ऑफ लो प्राइज्ड paperback edition, the God That Failed. He bought the copy. He contained 6 different essays by 6 different writers. Clear? मतलब उन्होंने एक बुक थी यहाँ पे, द गॉड दैट फील्ड. एक क्वेश्चन भी आएगा आपका, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ द गॉड दैट फील्ड.
इन द चैप्टर. सो यहाँ पे जो गॉट दैट फेल्ड का जो बुक है वो कहीं ना कहीं उससे ही कहीं ना कहीं उन लोगों को पता चला था. जो ऑथर है उन्होंने 6 डिफरेंट एसेज और अलग अलग से डिफरेंट राइटर्स के उठाए थे, और फ्रॉम वहाँ से उनको ये पता चला था कि जो पर्सन है उनके वहाँ पे आए थे एज अ गेस्ट इन द जेमिनी स्टूडियो, ही वॉज स्टीफन स्पेंडर. ओके, they describe the writer journey into communism and the ओके. सो वो राइटर जो है वो पूरे कम्युनिज्म की जर्नी को और वहाँ पे जो फ्रीडम्स हुए थे उनकी जर्नी के बारे में बताया था. वन ऑफ द राइटर वॉज स्टीफन स्पेंडर. द होल मिस्ट्री ऑफ स्टीफन स्पेंडर विजिट वॉज क्लियर. अब देखो उनको अब इसीलिए उनको क्लियर हो गया कैसे, कि उनको पता चल गया कि ये जो पर्सन है वो क्यों आए थे वहाँ पे, बिकॉज वो जो राइटिंग डिपार्टमेंट के लोग थे वो उनको उनके बारे में समझाना चाहते थे कि आप किस तरह से आप लिख सकते हैं या क्या है, वो सारी मिस्ट्री उनको पता चली है तब. So Mr. Watson was not interested in his poetry but he in his views of communism. जो ऑनर थे जेमिनी स्टूडियो के वो भी उनके उन पोएम्स में और राइटिंग में वो नहीं थे, लेकिन उनको जो थॉट प्रोसेस था, जो व्यू पॉइंट थे कम्युनिज्म के, उनसे वो उनको वो पसंद करते थे. तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा अभी तक कि पहले जो लीगल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो किस तरह से रहते थे, उनके यूनिफॉर्म्स कैसे होते थे, राइटिंग डिपार्टमेंट के यूनिफॉर्म कैसे होते थे. एक क्वेश्चन आएगा डिस्कस अबाउट द डिफरेंट अटायर्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन जेमिनी स्टूडियो, वो इसमें क्लियर हो किया है हमने. सेकंड है द पर्सपेक्टिव ऑफ जेमिनी स्टूडियो अबाउट कम्युनिज्म. तो वो कम्युनिज्म के बारे में उनका पता चल गया कि दे आर कम्प्लीटली एंटी कम्युनिज्म वेदर दे आर बिलोंग्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. एक क्वेश्चन ये, और इसी का ही सेकंड क्वेश्चन कैसे आएगा, हाउ कुड यू से दैट द जेमिनी स्टूडियो वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन. क्लियर. अब यहाँ पे नेक्स्ट जो एक गेस्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि एक जेमिनी जो उनके बॉस उन्होंने अनाउंस किया कि आफ्टर फ्यू वीक्स वी हैव अ गेस्ट इन आवर जेमिनी स्टूडियो. तो जो वहाँ पे जो अलग अलग लोग थे दे हैव अ डिफरेंट परसेप्शन अबाउट दैट पर्सन, कि मे बी इज अ पोएट, मे बी इज अ एडिटर, मे बी इज अ राइटर और समथिंग, और ही वॉज एन एक्टर. ओके. सो लेटर ऑन मिस्ट्री कैसे सॉल्व हुई, जब एक मिस्टर वॉसन ने या बताया कि एक आर्टिकल छपा था द हिंदू में कि आप जो भी इंडियन राइटर्स हैं वो अपनी एंट्रीज करवा सकते हैं अबाउट राइटिंग अबाउट ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री. ओके. सो यहाँ पे उन्होंने जब सारी चीज़ों को पता करने के लिए जब ऑथर जब लाइब्रेरी गए वहाँ पे उनको वो बुक्स मिली, द गॉट दैट फेल्ड, द गॉट दैट बुक्स, एंड वहाँ पे 6 डिफरेंट राइटर्स के 6 डिफरेंट एसेज उन्होंने उठाए. तो वहाँ पे एक जो पर्सन था, एक जो राइटर था वो कौन था, स्टीफन स्पेंडर. तो यहाँ पे उनको क्लियर पता चल गया कि वो जो कम्युनिज्म से रिलेटेड एलिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए वो जेमिनी स्टूडियो में गए थे. Clear. So this is the entire chapter. I hope you clearly understand that chapter. Clear. So main इसमें जो main important questions हैं that were given in your assignment, and I hope you are able to do all the question in your fair notebook. Okay. Thank you.